میرے والد کو کیوں اٹھائیں گے؟ وہ تو ہر بندے کو اٹھاتے ہیں، صرف میرے والد ہی نہیں۔ السلام علیکم، مائنس نیوز اس وقت موجود ہے BYC کے کیمپ میں۔ یہاں پر خواتین جو ہیں تقریباً 2 ہفتے ہونے کو ہے یہ یہاں پر موجود ہیں، اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کو قانون کے مطابق یا تو ظاہر ہے عدالتوں میں پروڈیوس کیا جائے، ان کے پیاروں سے ان کو ملوایا جائے۔ لیکن بلوچستان سے یہ لوگ آئے ہیں اور بارہا یہ لوگ احتجاج کر چکے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کے پاس ان کے مسئلے کا حل کیوں نہیں ہے، کیونکہ نہ تو بلوچستان حکومت ان کا مسئلہ حل کرتی ہے، نہ لاپتہ کمیشن جو لاپتہ افراد کا بنایا گیا تھا انہوں نے بھی یہ مسئلہ حل نہیں کیا۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں لیکن یہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ آئیے ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کی کہانیاں جانتے ہیں کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں اور ان کے کون سے پیارے جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ BYC کے کیمپ پہ ہم موجود ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معصومہ بلوچ۔ السلام علیکم معصومہ، آپ کتنے سال کے ہو میں 10 سال کی ہوں۔ اور آپ کے گھر سے کون لاپتہ ہے؟ میرے گھر سے میرے والد جنزی بلوچ لاپتہ ہے۔ اور آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں کوئٹہ سے آئی ہوں۔ اور آپ کیا کہو گے، کیا کہانی، آپ کے والد کو کیوں اٹھایا گیا ہے؟ میرے والد کو کیوں اٹھائیں گے؟ وہ تو ہر بندے کو اٹھاتے ہیں، صرف میرے والد ہی نہیں۔ وہ ایک درزی تھے، وہ نہ ہی BYC میں تھے اور نہ ہی کسی چیز میں تھے، آخر اسے کیوں اٹھایا گیا؟ وہ صرف ایک درزی تھے، ایک ٹیلر تھے، ان کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ آپ کچھ کہو گے حکومت سے کہ آپ کے والد کو آپ سے ملوایا جائے؟ دیکھیں، اس وقت میں 3 مہینے کی تھی، تو میں ریاست سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز خدا کو مانے مجھے میرے والد سے ملوائیں۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب میرے والد کو لاپتہ کیا گیا تھا، اس وقت میں نے اپنے والد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، میں اس کے سائے کو محسوس بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ تو معصومہ آپ خود کیا کرتے ہو، کہ آپ اسکول جاتے ہو، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں اسکول جاتی ہوں، میں 5th کلاس میں پڑھتی ہوں۔ اچھا، اور آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ مجھے بہن بھائی نہیں ہے۔ آپ اکیلے ہو؟ جی۔ تو آپ کی والدہ وہ خود بھی پریشان ہوگی، آپ کیا کہتے ہو کہ آپ کے والد سے آپ کو ملوا دیا جائے؟ اور کیا آپ لوگوں نے کوئی جیسے پولیس اسٹیشن وغیرہ جاتے ہیں کوئی FIR وغیرہ بھی درج کرائی تھی؟ جی ہم نے کرائی تھی، مگر انہوں نے FIR انہوں نے نہیں اٹھایا۔ انہوں نے بولا ہم کیسے آپ کے اوپر یقین کریں کہ آپ کا بندہ لاپتہ ہے؟ ہم نے انہیں بولا کہ آپ نے خود ہی اٹھایا ہے، کیسے آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کریں گے؟ وہ لوگ بول رہے تھے نہیں، ہم FIR نہیں اٹھائیں گے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے یہاں آنے سے آپ کے والد صاحب کو رہائی ممکن ہو جائے گی؟ جی ہم یہاں پر اسی وجہ سے ہی تو آتے ہیں کہ ہمارے بندے اور ہمارے لیڈران کو بازیاب کریں، انہیں رہا کریں۔ اور کچھ کہو گے یہاں آنے کے بعد آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے معصومہ؟ یہاں پہ آنے کے بعد تیز دھوپ میں اور بارش میں ہم یہاں پر بیٹھے تھے اور ہمیں کیمپ بھی لگانے کے لیے نہیں چھوڑا گیا کہ ہم اس کے نیچے رہے، اور ہمیں دھوپ یا بارش کی ہمیں دھوپ تیز نہیں لگے اور نہ ہی بارش ہمارے اوپر ہو، مگر ریاست کو یہ بات بھی منظور نہیں ہوئی تو انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ ہم اس وقت موجود ہیں BYC کے کیمپ میں، اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں خاص طور پر جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی کے لیے یہ لوگ بلوچستان سے یہاں آئے ہیں۔ نیشنل پریس کلب اس کی سراؤنڈنگز کو سیل کر دیا گیا ہے اور ان کو احتجاج کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ F6 میں جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے اسلام آباد پولیس کا، اس کے سامنے روڈ پر بیٹھے ہوئے سراپا احتجاج ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تربت سے سیما بلوچ صاحبہ، ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے ان کی کہانی کیا ہے، ان کے خاندان سے کون لاپتہ ہے۔ سیما ہمیں بتائیے گا، سب سے پہلے اپنا تعارف فرمائیں، آپ کیا کرتی ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ میں سیما بلوچ اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ میں 4 اکتوبر 2016 سے پہلے اپنے گھر تک، اپنے بچوں تک محدود تھی، لیکن 4 اکتوبر 2016 میں جب میرے بھائی کو لاپتہ کیا گیا، اس کے بعد سے میں نے اپنی زندگی کے بیشتر دن انہی سڑکوں پہ گزارا ہے۔ اسلام آباد بھی یہ میری پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ میرا تیسرا مرتبہ ہے۔ پہلے میں 2021 میں آئی تھی اور پھر 2023 میں آئی تھی اور اب بھی آئی ہوں۔ کراچی، کوئٹہ، تربت، جہاں کہیں بھی کوئی بھی احتجاج، کوئی بھی دھرنا ہوتا ہے میں وہاں پہ موجود ہوتی ہوں، اپنے بھائی کی حفاظت بازیابی کے لیے آواز بلند کرتی ہوں۔ لیکن آج تک اس ریاست نے ہمیں دی ہیں صرف مایوسی، دھمکیاں، ہراسمنٹ، سب انہوں نے انصاف کے نام پہ ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، اور ہم
चीख चीख के यही कहते हैं कि अगर हमारे प्यारों ने कोई भी गुनाह किया है आपने अपने अदालतों में लाएं, उन्हें सज़ा दें, हमें कबूल है। लेकिन इस तरह 9 साल गुजरने के बावजूद आज तक मेरे भाई का कुछ पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में है, और मेरा पूरा ख़ानदान एक ऐसी खतरनाक ज़िंदगी गुजार रहा है जो मैं बयान नहीं कर सकती। हर दिन हर लम्हा हमारे लिए सालों से ऊपर होता है। मेरी अम्मी हर दिन दरवाज़े के सामने बैठ के यही कहती हैं कि मैं दरवाज़े में देखती हूँ कि कहीं मेरा बेटा आ जाए तो मैं उसे पहली झलक में देख लूँ कि वो कैसा है। रातों को उसे नींद नहीं आती है, कहती हैं कि अगर मैं सो जाऊँगी, अगर मेरा बेटा आएगा, दरवाज़ा खटखटाएगा, अगर मैं दरवाज़ा ना खोलूँ पता नहीं वो क्या सोचेगा कि मेरे लिए वो इंतज़ार नहीं कर रहा था। हर बार जब कोई भी धरना होता है, जहाँ कहीं भी कमीशनों की पेशी होती है, तो मैं जाती हूँ वहाँ पे। जब मैं वापस अपने घर जाती हूँ तो मेरी अम्मी पहले आके मुझसे पूछती हैं, सीमा क्या पता चला शबीर का कुछ कहाँ है, किस हाल में है। लेकिन आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। हम हुकूमत से यही अपील करते आ रहे हैं कि हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी इंसान हैं। यहाँ पे तो जानवरों के साथ भी इस तरह का सलूक नहीं होता है जिस तरह हमारे साथ हो रहा है। पिछले 16 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हुए, बूढ़ी माएँ हैं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी खुद की बेटी 4 साल शारुल मेरे साथ है। वो रोज़ाना पूछती हैं, अम्मा हम कब घर को चलेंगे, यहाँ पे मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे रोड पे नहीं बैठना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने भाई बहनों के साथ खेलना है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बदकिस्मती से इस रियासत ने हमारी किस्मत में यही रोडें लिखी हैं, और बजाय हमें सुनने के हर रोज़ हमें हरासा किया जाता है। जब हम प्रेस क्लब के सामने बैठना चाहते हैं, वहाँ के सारे रास्ते उन्होंने सील कर दिए हैं। हम मजबूर होकर इस रोड पे बैठे हैं। यहाँ पे हमें टेंट लगाने की भी इजाज़त नहीं है। चाहे कितनी भी धूप हो, बारिश हो, ये बूढ़ी माएँ यहाँ पे बैठी है। और हमारे सादे से मुतालबा थे कि हमारे लोगों ने जो भी गुनाह किया है उन्हें मंजर आम पर लाया जाए। यहाँ इस कैंप के सादे से मुतालबा थे कि BYC के लीडरान को रिहा किया जाए। और बलूचिस्तान में हर रोज़ कई नौजवान लापता किए जाते हैं, हर रोज़ कई माओं की लख्त जगरों की मसखशुदा लाशें फेंकी जाती हैं। हम हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं कि खुदा ये सब कुछ बंद करे। बलूचिस्तान में आए रोज़ बहुत नौजवानों की लाशें गिरी हैं। जब कहीं से भी कोई लाश गिरती है तो हमारा दिल ऐसे लर्ज़ उठता है कि कहीं इनमें से हमारे लख्त जगर ना हो। मैं खुद दिन में 1000 बार ये सोचती हूँ कि खुदा ना करे मुझे भी शबीर की लाश ना मिले। मैं रियासत से यही कहती हूँ कि मेरे भाई को सही सलामत आपके इदारे वाले लेके गए, मुझे मेरा भाई सही सलामत चाहिए। और इन यहाँ पे बैठे हुए इन तमाम लोगों का बस ये यहाँ पे उनके हाथों में बंदूकें नहीं है कि आप इनसे डरते हो, इनको एहतजाज का भी हक़ नहीं देते हो। यहाँ पे अपने प्यारों की तस्वीरें हाथ में उठाए हुए हैं, बेजान तस्वीरें इनके हाथ में, और कोई असला नहीं है। आप आएँ, इन्हें सुने, इन्हें इंसाफ दें। हम बस यही चाहते हैं कि हमें भी इंसान समझा जाए, हमें भी इस मुल्क का शहरी समझा जाए। सीमा बलोच, ये बताएं कि आपने जैसे कहा कि इदारे वालों ने आपके भाई को उठा लिया, तो क्या आपके घर से लेके गए थे या वो लापता हो गए थे? कैसे आपको मालूम पड़ा कि आपका भाई मिसिंग है? मेरे भाई को हमारे किसी रिश्तेदार के घर से, उनकी बीवी के सामने से, और बाकी पूरे इलाके को चापा लगाया गया था, और 25 लोगों के साथ उसे लेके गए थे। और 25 में से सबको 2 हफ्ते के बाद छोड़ दिया गया, और उनमें से एक को 2 साल बाद छोड़ दिया गया। और वो जो 2 साल बाद लौट के आया, उन्होंने कहा कि हमने देखा है, हमारे साथ था, वो सही सलामत था। मेरी भाभी जिनकी आंखों के सामने से मेरे भाई को घसीटते हुए लेके गए, वो वहाँ पे रोती रही, वहाँ पे चीखती रही कि उन्हें छोड़ दें। बस वो ये कह के उनको लेके गए, उनकी आंखों पे पट्टी बांध के लेके गए कि हम कुछ पूछताछ करके उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक उसको नहीं छोड़ा गया। और FC और आर्मी के वर्दी में लोग आए हुए थे, 25-30 के करीब गाड़ियाँ थी, और बहुत सारे लोगों को लेके गए थे। और जब हम कमीशन या हाई कोर्ट में पेशी के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें चश्मदीद गवाह चाहिए, और मेरी भाभी उनकी चश्मदीद गवाह है, लेकिन वो कहते हैं कि हम इनकी बात नहीं मानते, और जो लोग उनके साथ उठाए गए थे उनको लेके आए। मैं उनके पास भी गई थी कि आप लोग आके गवाही दे दें, तो वो बहुत, उनकी माएँ बहनें रोने लगती हैं, कहती हैं कि हमारे बच्चों को दूसरी ज़िंदगी मिली है, ये हमसे ना छीनें। फिर मैं खुद एक बहन हो के मैं अपने भाई के लिए इतने सालों से तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है, अगर मेरी वजह से आप लोग आके वहाँ पे गवाही देते हो तो फिर दोबारा आपको उठाया जाएगा, मारा जाएगा। ऐसा मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों का घर उजड़े। और सीमा बलोच, आप कितने बहन भाई हैं? शब्बीर का कौन सा नंबर था? आपसे छोटा है, बड़ा है?
हम 7 भाई बहनें हैं, हम 3 बहनें हैं, 4 भाई हैं। सबसे बड़ी मेरी बहन है, उससे छोटा शबीर है, मैं शबीर से छोटी हूँ। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगी? कौन इस मसले को हल कर सकता है? किसी से अपील करेंगी? चीफ जस्टिस से, आर्मी चीफ से, वजीर आजम से, हुकूमत से, किसी से कुछ कह दें, कोई पैगाम दें? हम आर्मी चीफ से और उन तमाम इदारों से अपील करते हैं कि जो जबरी गुमशुदगी में मलवस हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा हमारे लोगों ने जो भी गुनाह किया है आप उन्हें मंजर आम पर लाया जाए। इससे पहले 2021 में हम यहाँ पे आए थे, डी चौक पे हमने धरना दिया था, तब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तब उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी कि हमारे लोगों को 3 महीने के अंदर छोड़ दिया जाएगा, और 3 महीने अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। मैं समझती हूँ कि इन हुकूमती इदारों के इन जो वज़ीर आज़म हैं, जो भी हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। जो इनके इख्तियार में है वो हमें सुने, आर्मी चीफ हमें सुने, चीफ वो हमें इंसाफ दें, हमारे लोगों को हमें वापस दे दें। जो ये बूढ़ी माएँ यहाँ पे बैठी हैं, ये उम्मीद के साथ यहाँ पे आए हैं कि हमें बलूचिस्तान में नहीं सुना जाता। वहाँ पर जब हम एहतजाज के लिए निकलते हैं तो वहाँ हम पे लाठी चार्ज होती है, हमें गिरफ्तार किया जाता है और एहतजाजों पे फायरिंग की जाती है। कई नौजवान एहतजाजों के दौरान शहीद होते हैं। हम इस उम्मीद के साथ इस मर्तबा इस्लामाबाद आए हैं कि शायद किसी में इंसानियत हो, किसी को एहसास हो इन बूढ़ी माओं का, हमारे छोटे छोटे बच्चों पर थोड़ा सा तरस का हमें इंसाफ दे। अच्छा सीमा बलोच, हमें ये बताइएगा, आपके भाई जो शबीर बलोच लापता हैं, क्या वो किसी तंजीम के साथ थे? उन पर क्या इल्ज़ाम है? इस हवाले से भी हमें बताएं। हम रियासत से यही पूछते आ रहे हैं कि हमें बताया जाए ऐसा कौन सा गुनाह शबीर ने किया है जिसे 9 साल गुजरने के बावजूद आप साबित नहीं कर सके, आप सामने नहीं ला सके। मेरे भाई एक स्टूडेंट था जो कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता था, उस वक्त वो नहीं ले पा रहा था कि वो उनके मतलब मेरे ख़ानदान के माली हालात सही नहीं थे, बस वो कराची यूनिवर्सिटी में दाखिले के ख्वाहिशमंद था, वो पढ़ना चाहता था, आगे अपने कौम के लिए कुछ करना चाहता, वो किताब की शौकीन था, वो किताबें पढ़ता था। उसका मेरे ख़्याल में गुनाह यही है कि वो पढ़ता था और वो दूसरों को भी कहता था कि वो पढ़ें और कुछ अपने लोगों के लिए करें। वो तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है। मेरे ख़्याल में मेरे भाई का सबसे बड़ा गुनाह ये था कि वो किताब दोस्त था, वो तालीम दोस्त था। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राशिदा, जो कि हब चौकी से आई हैं। उनका भी मुतालबा यही है कि उनके प्यारे जो लापता हैं उनको बाजियाब कराया जाए। राशिदा, हमें थोड़ी अपनी कहानी सुनाएं, आपके ख़ानदान से कौन मिसिंग है? मेरे 2 भाई मिसिंग। जुनेद हमीद को 8 अक्टूबर 2024 को लापता किया गया और दूसरे को कलात से 11 अक्टूबर 2024 को लापता किया गया। फौजी भी आए थे और सिविल वर्दी भी आए थे, उसको लापता किया। क्या वजह, क्यों आपके भाइयों को लेके गए? वजह तो कुछ नहीं है, बस वैसे सभी को ले जाते हैं। वजह क्या, सब ने वजह किया है, किसी का कोई वजह नहीं है, बस बेगुनाह को उठा के। उसको भी पता है, रियासत को भी पता है वो बेगुनाह है। तो क्या जुनैद और यासिर की किसी तंजीम से वाबस्तगी थी? नहीं, कोई भी तंजीम से वाबस्ता नहीं। क्या करते थे वो? एक कंपनी में काम करते थे, दूसरे वो तेल का काम करते थे। ठीक है, और आपके किसी और रिश्तेदार को भी इसी तरह से उठाया गया या सिर्फ आपके भाइयों को लेके गए? नहीं, हमारे किसी को भी नहीं उठाया। तो क्या मुतालबा करेंगी कि आपके भाइयों को बाजियाब हो? मेरा मतलब ये है कि मेरे भाई ने जो भी गुनाह किया है उन्हें अदालत में पेश करे। अगर उन्होंने गुनाह नहीं किया है तो क्यों इस तरह पकड़ा हुआ है उनको? अभी 10 महीने हो गए हैं उन लोगों को, अभी तक बंद है, कोई अता पता कुछ भी नहीं है उनका। अदालतें बनाई हैं तो अदालत में पेश करें। बेगुनाह है, इस रियासत को भी पता है कि बेगुनाह है, फिर पकड़ा क्यों? तो आप क्या कहती हैं कि आपको क्या लगता है कि क्यों बेगुनाह लोगों को उठाते हैं ये? बस बलूचिस्तान में इस तरह कर रहे हैं सभी बेगुनाह को। कहीं और कुछ होता है तो इस इलाके के सब बच्चों को उठा के ले जाते हैं। कुछ कहेंगी हुकूमत से, क्या मुतालबा करेंगी? हुकूमत से मेरा ये अपील है कि मेरे भाइयों को या अदालत में पेश करें या बाजियाब करें और मेरे लीडरान को भी बाजियाब किया जाए। और ये बीबी हमें बताएं, आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरे बेटा लापता है। कब से? 2012। क्यों लापता है? क्या इल्जाम लगाया है उस पे? कुछ भी नहीं था, घर में सोया था, उसने छापा लगा कर ले गया। तो कुछ हमें अपनी कहानी बताएं, फिर आप कहीं गई पुलिस स्टेशन, कहाँ कहाँ राब्ता किया? ये रब्ता बहुत किया कि हमारे वश था, जो वश नहीं था, हम गरीब लोग के हमको वश नहीं था। 2 दफ़ा इस्लामाबाद भी आ गया,
हम इधर उधर ढूंढा, हमको उर्दू भी नहीं आता है, बलोची भी नहीं आता है, ऐसी गरीबी गुजारा है। हमारा बच्चा बेकसूर है तो उसको अदालत में पेश करो, जो कसूर नहीं है तो उसको बाजियाब करो, उसको छोटा छोटा बच्चा है, हम मजबूर बंदा है, हमारा बस नहीं है, हमारे बच्चों को बाजियाब करो, मारन का साथ सारा बलोचों के साथ, हमको न उर्दू आता है न कुछ आता है। वो इल्ज़ाम भी तो लगाते हैं ना कि जो अलहदा होना चाहते हैं बलूचिस्तान से, लोग उनको सपोर्ट करते हैं इसलिए हम उठाते हैं। क्या होती है, नहीं आती है बात ऐसा कुछ है? जी, नहीं आती है बात, कुछ नहीं। ठीक है, आप अपनी ज़बान में बेशक हुकूमत से कोई अपील कर दें। हमें अब मरी जबान में, मैं जबान मरी जबान में जी आप बात करें। हाँ, मैं बच्चे बच्चा बाजिया भी लोटा रिया करो, हमारा बच्चा को रिया का कसूरे नहीं दालता पेश कनी, सुनने से नहीं बाजियाब कनी, कसाने चुकती मम्मा साई चम्मा कोरान दर पर दरा मजबूरा में बच्चा रिया का रिया या लोटा नहीं। आपके कितने और बच्चे हैं? हमारे बच्चे 3 है और छोटा है, वो आपके साथ हैं बाकी? और साथ ही छोटा छोटा बच्चा है। तो पुलिस कुछ कहती है कि इनकी बाजियाबी के लिए वो कुछ करेंगे? क्या कुछ नहीं बोलती, हम 5 रोशी मायदा निश्तियाँ ने जवाब कहे न सवाल कहे हो रहे हैं, गर्मी है हमें निश्तियाँ मजबूरियाँ पा न पुलिस कहे न दुमी कसे कहे न मैं चौके बुर्जकन हमें निश्तियाँ बाजियाबिया लोटगा अल्लाह लोटनी अल्लाह नहीं बच्चा रिया का कुल बलोचा पजिया मारंगा आवारिया अल्लाह रिया करते रिया या लोटगा दुमी चिल्ले। जी आपने गुफ्तगू सुनी, चाहे औरी बीबी हो, मासूमा हो या सीमा बलोच हो, सबकी कहानियाँ एक जैसी हैं। चाहे कोयटा है, हब है, तुरबत है, सब लोगों की जो शिकायत है वो यही है हुकूमत से और रियासत से कि हमारे जो बहन भाई बेटे बाप जो लापता हैं उनको बाजियाब कराया जाए, कानून के मुताबिक उनको प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन ये मसला साल से हमें हल होता नज़र नहीं आता। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर तवज्जो देगी और ये मसला हल होगा। हमारी ये जो बहनें बेटियां रोड पर बैठी हुई सरापा एहतजाज हैं इस्लामाबाद में और इनको एहतजाज करने का भी हक नहीं दिया जा रहा है, इनका मसला फौरी तौर पर हल किया जाएगा।